साहिब जियो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्युंभग शुभं सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कयत है सूरा। आत्म जिणे सगल वसता कै जागा सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावण सहज समावण संग। जन के चरण वसै मेरे हियरे संग पुनीता देही। जन के तूर दयो कृपा निध नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत प्यार वाली बेनती है, जे ते मन का टिकाव लेना है, जे अज दे दिहाड़े नूं असीं समर्पित होना है, थोड़ा जिहा समा कढ़ के वीडियो ऑन करके बैठो। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, हथ बन के बेनती है कि घट्टो घट जे आप फेस टू फेस, मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं देख पावांगा, पर जे आप फेस टू फेस सुनन का यतन करोगे तुहाडा भी मन जुड़ेगा। अकाल पुरख वाहिगुरु साडे ते मेहर करन। सो बैठे हाँ, समय नूं सफला करना है, ना कि पास करना है। ये प्यार भरी बेनती है, भावें 10 हैं भावें 20 शरीर हाँ। गल शरीरां दी नहीं है, गल है टिकाव दी। सो एक बारी फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सिख पंथ दे महान जरनैल धन धन बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी का अज शहीदी दिहाड़ा है, जो हर कोई अपने अपने लेवल ते अपनी हाज़री लगा रहा है। संसार भर विच इस नूं मनाया जा रहा है। गुरु महाराज ने बख्शिश की है कि सवेर दे 2 दीवानां विच असी उस कड़ी नूं आरंभता तो लैके असी अखीर उस शहादत तक पहुँचना है। सो मन बिरतियां नूं एकाग्रता करके मन दी गहराइयां विचों कवो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत असी आरंभता कीती सी सवेर दे दीवान तो। सिद्धांत बड़ी वड्डी उच्ची चीज़ है। गुरु साहब ने सानू सिद्धांत दे मुताबिक इस संसार विच जीण दी जाच सिखाई है।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਲੀਲੀਓ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕੱਦਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਚਪਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸਨ, ਪੋਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
फिर उन्होंने एक नवी बाइबल छापी दोबारा तो जद सारिया ने आपस में विचार की साध संगत ते उस वेले ये नतीजे ते निकले असी उस विचारे नूं जिहड़ा सिद्धांत दा पक्का सी असी उहनूं मौत दे घाट उतार दिता है ते हुण अपना माफ़ीनामा किवें मंगीए उहदे कोलों माफ़ी किवें मंगीए। फिर सब पादरियां ने जिन्ने भी पौप सी वो जाके उसकी कबर ते माफ़ीनामा लिखिया ते उहदे नक रगड़े ते इंसाफ वास्ते माफ़ी मंगी कि साडे कोल भुल हो गई है। तू सिद्धांत दा पक्का सी, मौत नूं कबूल कर लिया, पर तू अपने स्टेटमेंट तो पिछे नहीं हटिया। तू सच सी, साडी बाइबल झूठ सी। बाइबल विच फिर दोबारा तो बाइबल विच कुछ चेंजिस लिआंदे ते नई बाइबल छापी गई। उन्होंने एक ऐसा साइंटिस्ट खो दिता कि शायद वो कुछ चिर होर रहिंदा ते पता नहीं दुनिया दे विच की अच्छी चीज़ां दी खोज करके ले आंदा। मेरे कहण तो मुराद ये वे कि सिद्धांत जे साडी जिंदगी विच लागू ने ते सानू किसी तरह की हुकूमत किसी तरह का कोई डरावा सानू कोई डरा नहीं सकता। तो ये सिद्धांत गुरु अर्जन देव महाराज ने उस तत्ती तवी ते बह के भी दस दिता कि कोई भावें आके बाणी कवे कि मेरे मुताबिक बाणी लिख दो। महाराज ने सिद्धांतां नाल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, किसी दे कहे अनुसार किसी मनुख की वडियाई नहीं लिखी, भावें उस तत्ती तवी ते बहना मंजूर कर लिया। इनू कहते ने सिद्धांतां दे प्रति आपा आप वार देना। अज यही बाबा बंदा सिंह बहादुर जो असी सवेरे ये विचारां कीतियां, किस तरह उन्हें चप्पड़ चीड़ी दी उस जंग दे विच किस तरह वजीद खान नूं आमने सामने टक्कर हुई ते हज़ारां दे हिसाब नाल बंदियां दी मौत हुई। उस मौत तो जदों सामने आमने सामने टक्कर होने लगी तो वजीद खान सोचदा है मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सामने लड़ा तो इनू मैं ख़त्म कर दांगा तो साड़ी जित हो जाएगी। पर उस तो पहला बाबा फतेह सिंह सामने आके उसने मुकाबला किया तो उहदे दो फाड़ किए जो सवेरे असी सांझ किया। जदों उसनूं नेजे ते उहदा सीस लटकाया, गड्डे ते उहदा धड़ लटका के जद पहुंचे सरहंद दी धरती ते बदले दी भावना नाल जद आए ते सरहंद दी धरती ते आके संगतां ने एक बेनती की कि बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी तुसी काम बड़ा सोहना सुचज्जा चंगा कीता है, पर यह धरती शहीदां दे खून दी डुल्ली हुई है। इत्थे मासूम बच्चियां दे खून डुले हन। तुसी किरपा करके इस पापी नूं सरहंदी धरती तो लै जाओ। तो संगतां दी बेनती नूं प्रवान करदे होए बाबा बंदा सिंह बहादुर उसनूं वापस होर कित्थे लै गए। फिर महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का ध्यान रखिया तो याद आया इस धरती ते वो केड़ी थां है जिथे लाडले जिन्हां नूं खून जिन्हां दा डुलिया है। उत्थे जाके उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फुट फुट के रोए कि तुसी बेकसूर। और कमाल दी गल मैं ये भी कही कि तुहाडी इस साके दे अंदर किसी ने भी आके किसी ने भी कोई हा दा नारा नहीं मारिया, कोई भी, सब नामर्द सन ते फुट फुट के रोया साध संगत। फिर उस धरती नूं फतेह किया, खालसा राज कायम किया, अपने सिक्के भी कढ़े गुरु नानक पातशाह दे नाम तो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो।
फिर उस तो 1710 तो बाद जितदा होया कई जिले कस्बे जिते। अज कुछ फरवरी मार्च का महीना सी, 1715 की गल है। ये गुरदास नंगर की गली विच जाके उत्थे डेरा कीता ते नाल काफ़ी सिंह सन। उन्हां नूं मुगलां नूं जिहड़ा फर्कशेयर सी, जिन्हें इस बहादुर शाह तो गद्दी तो बाद उहदी गद्दी ते बैठा सी, उन्हें आर्डर किया कि इस गुरदास नंगल की गढ़ी नूं घेरा पा लिता जाए। अंदर बंदा सिंह बहादुर, बाज सिंह, फतेह सिंह होर कई सिंह सन। बंदा सिंह बहादुर का परिवार भी सी, सुशील कौर बच्चा अजय सिंह छोटा सी। 1.25 लाख का घेरा पाया गया और एक घेरा 1-2 दिन का नहीं पाया, 8 महीने घेरा पिया रहा। उस घेरे दे अंदर पानी अन्न जल जाना बंद कर दिता गया। बंदा कितना चिर खा लेगा जे 1000 के हिसाब नाल सिंह अंदर होणगे। इतनी हालत पतली होंदी गई, खान नूं रोटी नहीं सी, पीन नूं जल नहीं सी। अध मोए होए सिख पत्ते खा के, साध संगत घास खा के अपने पेट नूं भर रहे सन। इत्थों तक जानवरां दी हड्डियां नूं पीस के उहदा चूरन बना के भी अपने पेट नूं भर रहे सन। हालात इतने बिगड़ गए, जिहड़े जानवर सी मर गए, उन्हां दी जिहड़ी बदबू सी, स्मैल सी, इतनी वध गई। एक भुख नाल शरीर ढिले हो गए, एक अंदर हालात इतने खराब हो गए कि रहना बदतर हो गया। और कितने शरीर अंदर शहीद हो गए। जदों शहीद होए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा हुण ते बाहर आना लाजमी है, ये ना होवे कि असीं अंदर ही मर जाइए। ज्यों ही किले का दरवाजा खोलिया, जिस तरह भुखा शेर कोई हुंदा ना, उस तरह इस मुगल फौजां, तुरकां दीयां फौजां आके इस तरह घेरा पा लिया। 740 सिंह ते बाबा बंदा सिंह जी का परिवार, इन्हां नूं बंदी बना लिया गया। लोहे की जंजीरां नाल इन्हां दा शरीर बन के एक लाहौर तो जलूस कढ़िया गया। गुरदास नंगल तो लाहौर लै गए, क्योंकि वह दसना चाहते सन लाहौर के लोगों नूं कि तुहानूं जिहदे उत्ते माण है, जिहड़ा तुसीं योद्धा कहंदे हो, सूरवीर कहंदे हो, इहदा जलूस कढ़ाया जाएगा। जलूस इस तरह का नहीं सी जिस तरह मैं कहां बच्चे का जन्मदिन हुंदा ना, वो नोक वालियां जिहड़ियां टोपियां पाउंदे ने ना, उस तरह दियां टोपी पवा के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं ते कुड़ियां वाले कपड़े पवा के, खल पशुआं दी ये सिंघां नूं सारियां नूं पवा के ते हाथी उत्ते पिंजरे विच बंद करके, जिहड़ा लोहे दी जंजीरां विच जकड़िया होया है, एक मखौल दा माहौल बना के वो 740 सिंघां नूं भी नाल लाहौर तो दिल्ली जलूस कढ़न का एक ऐलान होया। सब लोग जिस जिस बाजारां विचों लंघ रहे सन, वो वेख के दंग हो गए कि एक सूरवीर नूं किस तरह उहदा हर्षर किया जा रहा है। ये सिर्फ तां हुंदा सी कि कल तो कोई उस हकूमत नूं कोई जरूर ऐसी हिम्मत ना कर सके कि उहदे मनां दे विच ऐसा डर बिठाया जांदा सी। तुसीं देखो अरब कंट्रियां दे अंदर अज भी किसी दे हत्थ पैर कट्टने होण ना, अखां कड्ढनियां होण, ते वो भरे बाजार विच लिआंदे ने, बई तू चोरी कीती तेरे हत्थ कट्टे जाणगे। वो कट्टदे ने ताकि जिहड़े वेखण वाले ने वो अलर्ट हो जाण, सावधान हो जाण
कि जे मैं भी चोरी की तो मेरा भी हर्षर यही होएगा। उस वेले फिर साध संगत जलूस कढ़ते हुए जिथे जिथे पड़ाव आंदे रहे, जिहड़े सिंह सी पक्के सन, एक एक सिंह कोलों पूछना, भाई तुसी दीन कबूल करोगे इस्लाम या मौत? ते हर एक दा इको ही जवाब सी, मौत कबूल है। पर देखो साध संगत, 740 दे अंदर एक भी शरीर ने ईन नहीं मनी। वो भी किसी मां दे पुत्र होने ने, भरा दे भैणां दे भरा भी होने ने, किसी औरत दे पति भी होणगे, पर किसे एक ने भी ईन नहीं मनी। और हर पड़ाव दे अंदर 100 सिंह शहीद कर दे गए, ताकि समा ऐसा ही सी कि गुरु दे सामने, गुरु नूं जब शहीद किया तो सिख सामने सन, ते वो भी समा सी चांदनी चौक दा, जद गुरु सामने सी ते सिखां नूं शहीद किया जा रहा सी। ये पढ़ाइयां गुरु साहब दियां ते ये सिंघां ने पढ़ियां ही हुई सन। मौत तो वह डरदा है जिन्हों जान दी प्यार हुंदा है, जिदा प्यार ही गुरु वाल होवे ते उन्होंने मौत दी कोई परवाह नहीं होंदी। मौत ते आनी आनी है, पर वो कबीर कहंदे ना, ऐसी मरनी जो मरे बोहड़ न मरना होए। ओ वजी मौत मरो, बार बार मरना खत्म हो जाए। जिस मरने ते जग मर डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ओ मौत, जिस मौत नू सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। भावें कुछ भी हो जाए, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बोहड़ न मरना होए। ओ जी मौत मरी है। वो सिंघां नूं 740 सिंघां नूं शहीद करके, जिहड़ा बहादुर शाह दा स्थान सी, महल सी, उहदे मरण तो बाद फिर फरखशेर बनिया। उस महरौली दे उस स्थान ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं लैके गए। 1 महीना उसदे परिवार, घर वाली सुशील कौर, बच्चा अजय सिंह, बहुत सौखे परिवार दे सी। ये चंपा एक जगह है, उत्थे दे राजे दी कुड़ी सी, जो सरहंद विच नाल इन्हां नाल विआही गई सी। पर इन्हां दा परिवार भी गुरु नानक दे, गुरु तेग बहादुर साहब दे मुरीद सन। जद दिल्ली महरौली विच लियाया गया, बहुत तसीहे दिते, काल कोठरी विच रखिया गया। पर जिहड़े निडर हुंदे ने, जिन्हां नूं मौत दा खौफ नहीं हुंदा, जिहड़े मौत नाल भी मजाक करदे ने, उन्हां नूं मर जीवड़े कहंदे ने। दुनिया दियां मौतां ते तुसीं देखियां होणगियां, रोज़ कोई एक्सीडेंट नाल मर रहा है, कोई हार्ट अटैक नाल मर रहा है, कोई किसी रूप विच मर रहा है। पर ऐ वाली मौत ते कोई विरला ही मरदा है। वो फिर बार बार मरना नहीं हुंदा। वो ऐसी मौत नूं हर कोई जानना चाहता है कि मैं उस मौत नूं चाहना वा। ते साध संगत, उस वेले वो समा आया, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बाहर जंग संगलां नाल बन के जद विचार हुई, ते उन्होंने एक गल कही गई। ध्यान नाल सुनना। शर्तां 2 रखियां। पहली शर्त रखी बाबा बंदा सिंह बहादुर दे अगे, बंदा सिंह बहादुर, तेरे वास्ते गुरु बदलना कोई वड्डी गल नहीं है। तू पहला जानकी दास बदलिया, फिर राम जी दास बदलिया, फिर ओगणनाथ बदलिया, फिर तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बदलिया।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ, तेरी जान नू बख्श दिता जाएगा, तेरे परिवार नू बख्श दिता जाएगा, जेड़ी जागीर कहेगा, जेड़ा रुतबा कहेगा तैनू मिल जाएगा। कहंदे तुसी कह ते दिता मैं गुरु बदले ने, पर जेड़े मेरे पहला गुरु बदले ने ना, वो मन्नू बदला नहीं सके। भावें सी जानकी दास, भावें सी राम जी दास, ते भावें सी औगणनाथ, पर जदों मैं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शरण विच आया, इन्हां ने मेरे मन नूं ही बदला दिता, क्योंकि इन्हां दियां विचारां दे अंदर मनु वो परमात्मा की दात मिली जिन्हों मनु मन नूं ही बदला दिता। ते मनु हुण फिर होर किधर जाण दी लोड़ नहीं। ते उन्हां ने फिर कहा दूजी गल एक होर, या ये नहीं मनदा, तू ते है ते उही ही ना जिहड़ा एक मिरगनी दे बच्चे मरन ते ही तेरा तू अपने आप मन डोल गया सी, तू बैरागी बन गया सी, ते हुण वो मिरगनी दा बच्चा नहीं होएगा, हुण इंसान दा बच्चा होएगा, और इंसान दा भी बच्चा वो नहीं होएगा, वो तेरा बच्चा होएगा। हुण उस बच्चे दी मौत वेख सकना है। बड़ा कमाल दा जवाब दिता बंदा सिंह बहादुर जी ने। कहन लगे ठीक है, मैं मिरगनी दे बच्चे नूं वेख के बैरागी हो गया, मेरा मन पिघल गया, मैं डोल गया सी, ते अज तुसी मेरे बच्चे नूं मारन दी गल कर रहे हो। पर एक गल याद रखना, इन्हां दे विच भी एक इतिहास है। वो इतिहास है छोटे साहिबजादियां दा, वो भी तुसी वर्त के वेख लिया वे। उन्हां दी उम्र ते 7 साल सी, कोई गल नहीं, मेरे बच्चे दी उम्र ते 4 साल है। मैं उसे गुरु दा सिख हाँ, सानू गुरु ने वो पढ़ाई पढ़ा दिती है भाई, संसार दे लोग तैनू डरा नहीं सकणगे जे तू अकाल पुरख तेरे नाल होएगा। देखो कई बारी ना असी गलती भी कर जाने, कई बारी बंदा ना ये सोचता है कि गुरु जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हाथी रखिया सी ना, थापड़ा दिता सी, हालांकि कुछ भी नाल नहीं सी, ना मोहरां सी ना कुछ सी, 5 तीर ही सी, 5 सिंह ही सी कोल, पर गुरु दा जिहड़े बोल सी ना, गुरु ने कहा सी बंदा सिंह बहादुर जिथे वेखेगा ना उत्थे मैं तैनूं दिसांगा। तुसी कदी महाभारत दी युद्ध होई है ना, कौरव पांडव जद लड़न लगे ना, ते एक सवाल रखिया गया, इधर किशन महाराज ने, इधर फौजा ने, जो चाहते हो ले लो। ते कौरवां ने थोड़ी चलाकी दिखाई, उन्होंने सेना ले लिया हज़ारां दे हिसाब नाल, पांडवां ने किशन महाराज नूं ले लिया। उन्होंने कहा जे ये अवतारी पुरख साडे वाल होएगा, दुनिया दी कोई भी सानू हरा नहीं पाएगा। वो लखां दियां फौजां भी पांडवां दा कुछ नहीं कर सकियां। ते जे गुरु गोबिंद सिंह दा महाराज दा किसे ते हाथ हो जाएगा और प्यार वाला थापड़ा हो जाएगा, मैं दावे नाल कहना उन्होंने समय दे हाकम उन्होंने डोला नहीं पाणगे। वो कहन लगा जेड़े 2 बच्चे विच शहीद होए ने, जे वो नहीं डोले तो फिर मैं कित्थों डोलांगा, मैं भी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा पुत्तर हाँ। ते साध संगत उस वेले आर्डर होए, 3 जलादां नूं बुलाया गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 जलादां नूं उस वेले बुलाया गया। सामने सुशील कौर घर वाली बैठी है, बच्चा उहदी गोद विच है 4 साल दा अजय सिंह। थोड़ी अमेजिंग करो, क्या वो सीन होएगा, क्या वो जालमां दी मैं कहां इतनी जुल्म दी आंधी उन्होंने वसा दी कि
3 उन्होंने एक ऐसे जलाद मंगाए, माँ की गोदी विचों बच्चा खिंच लिया, उहदी दस्तार खोल के जूड़ा फड़ के वालों तो उन्होंने उत्ते चुक लिया बच्चे नूं। ते उस पहले जलाद ने वालों तो फड़ के हाथ उहदे पिछे कर ले, ते दूजा जलाद आया, उन्हें लत्तां फड़ के उहदियां पिछे कर दित्तियां। 4 साल का बच्चा की हुंदा है? बच्चा तो बोलना भी नहीं जानता। ते जंजीरां खोल दित्तियां ते हाथ विच छुरा फरा दिता। कहंदे बंदा सिंह बहादुर, तू अपने बच्चे नूं, तैनूं मारना पेगा, तू अपने बच्चे नूं मार। वो कहंदा मैं बच्चे नूं मारन वास्ते नहीं, जे जालम हुंदा, जे इन्हें जुलम ढाए होंदे तो फिर मैं छुरा मारन की सोच लैंदा। एक निहत्ते ते, एक गुरु साहब ने सानू बुजुर्ग ते, एक बच्चे ते, एक पिठ पिछे वार करन वास्ते सानू गुरु साहब ने मनाही कीती है। किसी मजलूम ते इस जिहड़ी असी शस्त्र पाने हैं ना, ये किसी नूं डराउण वास्ते नहीं ने, किसी गरीब नूं डराउण वास्ते नहीं है, किसी निहत्थे ते वार करन वास्ते नहीं है, किसी गरीब ते वार करन वास्ते नहीं, किसी बच्चे ते नहीं, किसी औरत ते नहीं, किसी बुजुर्ग ते वार करन वास्ते नहीं। ये जदों भी शस्त्र उठणगे ते जुलम रोकण वास्ते उठणगे। ये बच्चा, मासूम बच्चे नूं मैं नहीं मार सकता, क्योंकि इस बच्चे का कसूर कोई नहीं है। उन्होंने उहदे फिर जंजीरां नाल बंध दिता। फिर तीजा जलाद सी, अंदरों चुक के खंजर ले आया। उस खंजर नाल जिहड़े एक ने तो वाल और केस पकड़े हुए सन, हाथ पिछे कीते सन, दूजे ने लत्तां पिछियां कीतियां। 4 साल का बच्चा की हुंदा है? उन्हें खंजर लैके पहला तो उस बच्चे दे कपड़े पाड़े अगों। देखो, बच्चे नूं कुछ हो जाए ना तो मां का कितना हिरदा कोमल हुंदा है। उस मां नूं कितनी महाराज ने ताकत दिती होनी है। मैं तो अक्सर बेनती करना, गुरु साहब नूं कदी ना क्या करो दुख ना दवे। गुरु साहब नूं कहो दुख दवो, पर दुख सहण दी ताकत भी नाल दवो। जे गुरु दा थापड़ा ताकत गुरु दी पाया मिल जाएगी ना, दुनिया दे वड्डे वड्डे दुख भी सानू सुख लगणगे। बड़ी वड्डी गल है। यही कारण सी लाल शहीद करके चेहरे दा जलाल उवें सी। ते तीजा आया, उन्हें कपड़ा फाड़े चंद जेड़े उस बच्चे ने पाए हो सन, ज्यों ही खंजर लैके विच सीने दे बार के 2 पाड़ सीने दे किते ते हाथ पा के उस बच्चे दा कलेजा कढ़िया। कलेजा ही नहीं कढ़िया, उस अपने हाथ नूं घुमा के अंदर बच्चे दियां हड्डियां कड़कड़ा के उस बच्चे दियां हड्डियां तोड़ियां ते खून दा लथपथ जेड़ा कलेजा सी ना, कालजा, वो कढ़ के ते उहदे प्यो बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूँह दे विच ठुस दिता। खून दा लथपथ होया। बच्चे दा कलेजा मूँह च होवे, है कोई ऐसी शहादत मैनू दसो। देखो, सिद्धांत मैं पहला क्या किन्ने उच्चा है सिद्धांत। असी ते थोड़ी जी गल होवे दुनिया नूं दिखाण वास्ते अपनी रोमां दी बेदबी कर लैंदे ना, कि मेरे घर वाले नूं नहीं चंगा लगदा, मेरी घर वाली नूं नहीं चंगा लगदा, मेरे बच्चों दे विआह करने ने। वो भी तो बच्चा सी ना किसे दा। जेड़ा भी गुरु दे सिद्धांत तो चलेगा। देखो, मैं एक गल इत्थे होर कह दवां, जीसस नाम सुनिया क्रिश्चन दा? किसी नूं नहीं पता उन्होंने क्यों शहादत का जाम पिलाया है। बहुत घट पता होना है। जीसस होया है, उन्होंने अद्धे तो ज़्यादा वर्ड क्रिश्चन बना दिता है। पता उन्होंने साढ़े हुण बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों पढ़ते हैं ना, तो उत्थे पता की पढ़ाई पढ़ाई जाती है?
ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਭਾਈ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਸ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਗਿਣਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਨਾ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ B5 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਧਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਵੱਢ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਆਂਦੀ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ, ਆਂਦੀ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੜਕ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜਕੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਠੂਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ।
उन्होंने फिर उस वेले साध संगत हुक्म किया, सब तो पहला उहदे दोनों हाथ कट्टे गए, फिर दोनों पैर कट्टे, क्योंकि बड़ी मौत ऐसी देना चाहते सन। पर जिस दे होवे वल वो कदे ना हारदा, क्योंकि मेरा साहिब है ना, साहिब जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनू मार ना सके कोई। दुनिया दे भाणे वो शरीर करके मर गए, पर वो अज भी साडे दिलों दे विच, अज भी गुरु साहब दे हजूरी विच सन्मुख बैठे ने। उन्होंने फिर रज नहीं आया, उन्हों दी आत्मा फिर नहीं भरी गई। हाथ वड्डन तो बाद, उन्हों दियां लत्तां वड्डन तो बाद गरम गरम सीखा करके दोनों अखां दे विच पाईयां। तुसी अमेजिंग करो किन्नी वो शरीर किन्ने निडर अडोल उस भाणे नूं मन्नण विच। साडे घर 2 दिन गरीबी आ जाए ना ते असीं उलांभियां दी लिस्ट लैके परमात्मा कोल पहुंच जाने आ। 4 दिन गोडे ना चलन, एक दिन बुखार हो जाए, एक दिन बैड ते पैना पै जाए, असीं किन्नी परमात्मा नूं गिले शिकवे कर दिंने आ। पर वो सूए अखां दे विच पै रहे ने, पर उस धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शुकराना निकल रहा है। गुरु महाराज ये शुक्र है तुहाडा, मनु ये ताकत समर्था तुसी बख्शिश की है। गुरु कोलों यही गल मन्निया करो, गुरु साहब दवो दुख पावें, क्योंकि दुख आने ही आने ने। क्योंकि रोज असी कपड़े पाने, ये कपड़े तुसी कल नहीं पा सकोगे, परसों नहीं पा सकोगे, तुहानू एक दिन आएगा कपड़े चेंज करने पैने ने। इस तरह जिहड़ा सुख है ये भी सदा नहीं रहना, दुख है ये भी सदा नहीं रहना, पर इन्हां दोनों दे विच सतगुरु दे भाणे विच असीं रहना है। सतगुरु ने ये जाच सानू सिखाई है कि सिखा पहाड़ां वर्गे भी दुख आ जान, उस वेले भी अपने नेम नूं सब तो उत्ते रख, गुरु दे सिद्धांत नूं उत्ते रख। उन्होंने जद अखां दे विच ओ सीखां पाईयां, रज फेर भी नहीं आया। एक जलाद बोलिया, क्यों ना जमूर ले, जमूर समझदे हो ना, अजकल दी बोली च पलास कह लो, उस पलास नूं गर्म करके मांस नूं नोचिया गया। सारी बॉडी दा मांस नोच नोच के उस बाबा बंदा सिंह बहादुर दे शरीर दे उतों मांस लाया गया। ते ये मांस वेख के जिथे गिरिया ना, जिहड़ी सुशील कौर उन्हां दी घर वाली सी, उहदा भरा सी सहब सिंह, वो भी उत्थे सी। वो सारा मांस चुक के उत्थों भज पिया। ते इस तरह उन्होंने शहादत का जाम पिलाया। अज वो दिहाड़ा है साध संगत, वो लसानी शहीदी है जो कदी भुलन वाली नहीं है। मेरे कहन तो मुराद इतनी है, अपना अकीदा गुरु दे प्रति कदी भी ना तोड़ो। जे गुरु नूं अंग संग समझदे हो ते तुहाडा गुरु बड़ा ही समर्थ है। वो तुहानू तत्ती वाह नहीं लगन देगा, तत्ती वाह न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरदा मारे रामकार दुख लगे ना पाई। देखो साडे इतिहास नूं मैं जे फरोला ना, बाबा बंदा सिंह बहादुर तो भी होर भी बड़ा बड़ा इतिहास है। मानू सिंह जी वर्गे होए ने जिन्होंने मारन की इतनी कोशिश की, शेर तक छड़ दिता, पर उन्होंने शेर का भी मुकाबला किया। इत्थों तक वो जद उन्हों के हथों नहीं मरे ना, तो उन्होंने एक रस्से नाल बन के उहदा सिर इस तरह घुमा घुमा के पेड़ां दे नाल मार मार के उस सिंह नूं शहीद किया गया। पर सिखां दा घट गिनती च होंदा होया भी समय दी हुकूमतां डरदियां सी, ध्यान देना, डरदियां सी। तुसी कदी महाराजा रणजीत सिंह दे जरनैल दा नाम सुनिया ना होना, हरी सिंह नलूआ।
ये वो शख्सियत है अफगान दे अंदर, पेशावर दे अंदर मुसलमान बच्चे जद राती नहीं सोंदे सन, उन्हां दी मां पता की कहंदी सी, इन्ना खौफ सी हरी सिंह नलूआ दा, कहंदे बच्चिया सो जा नहीं तो हरी सिंह नलूआ आ जाएगा। देखो ध्यान नाल सुनो, हरी सिंह नलूआ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उहदा खौफ सी। यह जिहड़ी एक पिक्चर बनी सी ना शोले, एक कॉपी हरी सिंह नलूआ दी सी, भई सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, आंदा ना उहदे विच। दरअसल ये डायलॉग इन्होंने हरी सिंह नलूआ तो लिया है। और तुहानू एक होर नॉलेज वास्ते गल मेरी सामने आ गई कुदरती, ए मुसलमान लोग, इस्लाम लोग जिहड़ी सलवार पाते ने ना, ये पता क्यों पाते ने? ये हरी सिंह दे नलूए दे डर दे कारण उस टाइम पाते सन, क्योंकि उन्होंने पता सी हरी सिंह नलूआ आ गया, वो औरत बन जाते सन सलवार पा के। वो ऐसा रिवाज चलिया, अज तक मुसलमानों दे विच सलवार ही पैंदी जा रही है। ये सारा कुछ हरी सिंह नलूआ दे सदके है। भावें वो फैशन बन गया है, पर उस वेले दा खौफ अज भी उन्हां दे विच है। तुसी मैनूं खिमा कर देना, मैं एक गल होर एडे च ऐड करदा। तुसी जिहड़ियां नथनियां पांदियां ने जिहड़ियां भैणां मेरियां बड़ियां खुश होके, ये भी गुलामी की निशानी है। मैं कहांगा जिन्हां ने अमृत छक के जे नत्थी पा रहे ने, बाकी पान मन्नू कोई नहीं है। तुसी कदी अमृत पान करो ना तो तुहानू ये सब चीज़ां उतारियां जांदियां ने। पता क्यों? ये जितना भी शंगार है ना, गुलामी की निशानी है। साडे हिंदुआं धीआं भैणां दियां मुगल लोग की करते सन, गुलाम बनाने वास्ते, निशानी लाने वास्ते इन्हां दे नक विन जाते से, कान विन जाते सन, ताकि ये गुलाम ने, ये हिंदू लोग ने, इन्हों फिर गजनी के बाजारों में वेचा जाता सी। इन्हों ये निशानी भावें असी अज शौक नाल पा रहे हैं, पर यह गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। ये मनु कहण विच कोई गुरेज नहीं है, ये साडा इतिहास है। तो जे अज कोई साडी बीबी भैन अमृतधारी होके या बे अमृत नहीं भी छकिया, जे नक च कोका पाया, तो ये समझ लें ये मुगलों की गुलामी नूं अज तक असी सहार रहे हाँ। तो गुरु महाराज ने सानू बड़े बड़े योद्धे दिते ने, बड़े बड़िया, क्योंकि आप तत्ती तवियां ते बह के, आप चांदनी चौंक की धरती ते बह के निडर होके उन्हां जुल्मां दा टाकरा कीता, ते सानू एक उपदेश दिता, भाई पै काहू को देत नह पैमानत आन, को नानक सुनरे मना ज्ञानी ताहे बखान। ये निशानी दसी ज्ञानी दी। ज्ञानी के वजह होना चाहिए, ना किसी को डरे ना किसी को डराए। इस शस्त्र का भाव ही यही हुई है। सो अज का दिन साध संगत वो दिन है जो कभी भी ना भुलण वाला है। अपने बच्चों नूं इतिहास जरूर सुनाओ। मैं दावे नाल कहना, जिस बच्चे ने प्यार नाल तुहाडा इतिहास सुन लिया ना, वो बच्चा कभी भी दूजे पासे नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज कृपा करन, अज इस लसानी शहीदी नूं असी सांझ कीता है, और यही अरदास है सतगुरु के चरणों विच कि असी अज जिहड़े तिनों ही मेरा ख्याल समा एक घंटा गुरु साहब ने सेवा लई है। बड़ा लंबा इतिहास सी, मैं फिर भी संकोच के नहीं तो 4 या 5 घंटिया का बंदा सी, मैं थोड़ा जिहा संकोच के विचों 3 घंटिया का करके ते तीनों दीवानों में अज हाज़री गुरु साहब की बख्शी दे सदके लगाई है। मैं सारियां दे चरणों में बेनती करांगा, जिन्हों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास नहीं पूरा सुनिया, अज या कल तुहाडे कोलों तीनों पार्ट आ जाएंगे। बंदा सिंह बहादुर पार्ट 1, पार्ट 2 ते पार्ट 3। बड़े ध्यान नाल एकाग्रत होके, जे कित्थे तुसी कल्ले बह के इतिहास नूं सुनो ना, कदी सिक्खी तो डोलन दा तुहाडा मन नहीं करेगा। औंकड़ा भी आणगियां, पर सिक्खी नाल तुहाडा प्यार वधेगा।
ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗੇਗਾ। ਉਹ ਤਦੋਂ ਜਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।